کا جواب نہیں دے سکتے. پہلا سوال کیا ہے؟ این اللہ. اللہ کے نبی نے اس بڑھیا سے کیا سوال کیا؟ این اللہ، اے عورت اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا فی السماء، آپ اوپر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ جو اوپر جا رہے ہیں اور دین میں خدمت کر رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ کی ذات کہاں؟ اللہ کے بارے میں نہیں معلوم کہ آپ اللہ کی طرف کیا دعوت دیں گے لوگوں. اسی لیے اللہ نے کہا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا، جانو اللہ کے بارے میں، پہلے اس کی معرفت، اس کو پہچانو، اس کے بعد اس کو سمجھو، تسلیم کرو، اور اس کو جو ہے اس کے بعد زبان سے اقرار کرو، اس کے بعد جا کے دوسروں کو دعوت دو. اب کچھ بھی نہیں، ایسے اندھا ایمان، اندھی تبلیغ جو ہے نہیں چلتی، اندھا ایمان جو نہیں ہوتا. تو لہٰذا اللہ کی ذات کہاں ہے؟ اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے. اب بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں مانتے. بہت سارے لوگ آئے اور اس سے پہلے یونان سے ایک فلسفہ آیا، یونانی فلسفی جانتے نا، یونانی فلسفی. یونان سے ایک فلسفہ آیا، جیسا کہ اب امریکہ کی جیسا مشہور ہے، اس زمانے میں یونان کا فلسفہ جو ہے اتنا مشہور تھا. اس وقت وہ لوگ مسلمانوں سے مشورہ کریں آپس میں، دیکھو بھائی آپ مسلمان ہیں، ہم لوگ بھی جو ہے سائنسداں ہیں، اور یہ لوگ آپس میں مشورہ یہ کرے، دیکھیے ہم اور تم مل کر آپس میں ایک کر لیں گے، سمجھوتا کر لیں گے. کیا ہے وہ سمجھوتا؟ وہ سمجھوتا یہ ہے کہ دیکھو ہم بھی ایک پاور کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ایک طاقت ہے جو کائنات کو چلا رہی ہے، آپ بھی مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. تو ہم تم یہ کیا کریں گے، مل کے ایک سمجھوتا کر لیں گے. تمہارے ہمارے بیچ میں ذرے باتوں میں ٹکراؤ ہو رہا، اس کو ہم چھوڑ دیں گے. کیا ہے؟ تم بولتے کہ اللہ عرش کے اوپر ہی ہے، اس کو چھوڑ دیں گے. تو جو علماء سو تھے وہ لوگ کیا کریں، ٹھیک ہے چھوڑ دیں گے، کیا بات ہے، اور پورے مل کے ہم کیا کریں گے، دنیا کو آگے بڑھائیں گے. تو ان کے ساتھ مل گئے اور گمراہ ہو بڑے بڑے لوگ، اور بہت امام غزالی رحمہ اللہ، ایسے بہت سارے لوگ جو اس فلسفہ میں پڑ گئے. بعد میں آخر میں جو ہے توبہ کرے مرنے سے پہلے، ہم لوگ جو ہے منطق میں پڑھ کر، عقل کی باتوں میں پڑھ کے ہمیں کیا کرے، قرآن حدیث کو چھوڑ دے، مگر مرنے کے پہلے توبہ کر کے کہے کہ دیکھو بھائی ہمارا ایمان وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بڑی آگے کہی ہے کہ اللہ جو ہے اوپر، آخر میں قبول کر لیا الحمدللہ. تو لہٰذا یہ چیزوں میں جا کر سائنٹسٹ کیا ہوتا ہے، کوئی پاور دنیا، یہ سب ہمارا جو ہے ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث جو چلا ہوتی ہے اسی کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اللہ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے، یہ ہمارا ایمان ہے اور صحیح العقیدہ. اور جو لوگ دوسرے کیا کرتے، انشاءاللہ اسماء و صفات کا جب ذکر آئے گا تو میں بتاؤں گا کہ اللہ جو ہے اوپر ہے، بلکہ جو لوگ نہیں ہے وہ تو لوگ اس کو کیسا پکارنے کی کوشش. اب ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ عرش کہاں ہے اور اللہ رب العالمین کا زمین کہاں ہے، اللہ کا عرش کہاں ہے، یہ پوری چیزیں ہمیں بتائیں گے. تو 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے؟ پانی. تو انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں اب ہم بیان کریں گے. یہ ایک چیز ہے کرسی، وسیع کرسی السماوات والارض، کرسی ہے. کیا ہے؟ اور دوسرا کیا ہے؟ کیا یہ دو ایک ہے الگ الگ ہے؟ ہاں ایک ہی بولنے والے ہاتھ اٹھاؤ. یہ چونکہ ایسے ہے، کوئی ایک اشک نہیں، ایسے عرش اور کرسی کیا یہ دو بھی برابر ہے کہ الگ الگ ہے؟ برابر ہے بولنے والے ہاتھ اٹھاؤ. عرش اور کرسی ایک ہی بولنے والے ہاتھ اٹھاؤ، اور الگ الگ بولنے والے ہاتھ اٹھاؤ. کئی کو الگ ہے، سمجھو ان کو ایسا الگ الگ کون سمجھاتے ہیں؟ کاولی کے اسٹوڈنٹس نمبر سے پہلے پڑھے وہ لوگ اور 10 سال سے پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ نہیں سکا حوالے کوئی دوسرے کوئی سمجھا. جمع تخت، ہاں کسے تخت بولتے ہیں؟
अर्श को तख्त बोलते हैं, इसे नहीं, ये दोनों में फर्क क्या है? हाँ हाँ, अर्श के ऊपर कुर्सी है। हाँ, और इंशाल्लाह बैठ जाइए, इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ऐसे चीज़ों का हम इल्म हासिल करेंगे कुरान और हदीस के रोशनी में, तो हमारा जहन क्या होगा? खुल जाएगा, अल्लाह की मारिफत होगी और अल्लाह की अज़मत मालूम होगी, अल्लाह की अज़मत मालूम होगी। अब देखिए, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सामने बताऊंगा कि पहले जो है अल्लाह कहाँ है वो तो हम जान लिए, अल्लाह की ज़ात कहाँ है? अर्श के ऊपर है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। मिसाल के तौर पे ये कायनात को हम लोग देख रहे हैं, ज़मीन कहाँ है? सोलर सिस्टम में कहीं एक छोटा सा एक सैयारा है ज़मीन, और मिसाल के तौर पे समझिए कि ज़मीन ये क्या है? ज़मीन है, इसके ऊपर क्या है? क्या है वो? पहला आसमान समझिए, उसके बाद क्या है? दूसरा आसमान, फिर तो हदीस के अंदर आता है कि यहाँ से यहाँ तक का मुसाफर कितना है? 1000 years, 5500 है। यहाँ से यहाँ तक का सफर के लिए कितने साल का सफर है? 500 साल का सफर है। यहाँ से पहले आसमान का सफर 500 साल का। उसके बाद एक रिवायत में है कि पहला आसमान कितना मोटा है? यहाँ से पहला आसमान को साइंटिस्ट बोलते धुआं है, कुछ भी नहीं है। क्या सही? हमारा ईमान है कि आसमान एक मजबूत चीज़ है और उसमें दरवाजे भी है, उसके अंदर क्या है? दरवाजे भी है, ये हमारा ईमान है। अब देखिए, तो फिर पहला आसमान जो है यहाँ से यहाँ तक का मुसाफिर कितना? 500 साल का, 500 ईयर। फिर ये जो आसमान है ना, पहला आसमान, इसकी मोटाई कितनी है? 500 साल की। कितनी? 500 साल। समझ में आया? फिर आप यहाँ से पहले आसमान को पहुँचने के लिए कितना होगा? पहले आसमान तक पहुँचने के लिए 500 साल लगेंगे। वहाँ से फिर उसकी मोटाई कितनी मोटी है आसमान की बोले तो फिर 500 साल का सफ़र है। 500 साल के बाद तुम्हें पहले आसमान के ऊपर जाते हैं। टोटल कितने हुए? 1000 हुए। वहाँ खड़े को देखते फिर दो आसमान दिखता। वहाँ से फिर 500 साल का सफ़र करे तो दूसरा आसमान आता। क्या आता? फिर दूसरा आसमान 500 साल का सफ़र करना, फिर करे तो फिर दूसरे आसमान को जाते, उसकी मोटाई 500 साल की। वैसा जाते 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 7वें आसमान के ऊपर पहुंचने के लिए कितने साल पकड़ते? 7000 साल। कितने? 7000 साल का सफर। कितना? 7000 साल का सफर। 7000 साल के सफर के बाद 7वें आसमान के ऊपर जाते हैं। जहाँ ऊपर उंगली उठाए तो ऊपर क्या है? कुर्सी। क्यों? कुरान मजीद के अंदर अल्लाह फरमाता है वसिआ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। अल्लाह की कुर्सी क्या है? 7 आसमानों को घेरी हुई, 7 आसमानों को घेरी हुई। और रिवायत के अंदर आता है कि आसमान के अर्श की कुर्सी के सामने वसिआ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, 7 आसमानों के ऊपर क्या है? अर्श है कि कुर्सी है? कुर्सी है। और कुर्सी के सामने आसमान कितना छोटा है कि एक बहुत बड़ा ढाल है। ढाल किसको बोलते हैं? ढाल किसको बोलते हैं? जंग में जाते वक्त क्या करता है? एक आदमी एक हाथ में तलवार होती है, एक हाथ में ढाल पकड़ता ताकि सामने वाले के हमले से बच ले। बहुत बड़ा होता ढाल। और ढाल के सामने रुपए के सिक्के, छोटे छोटे रुपए के बिल्ले रखे तो रुपए के सिक्के रखे तो कैसा आता? तो अगर इसको तुम लोग यानी ढाल को अर्श कुर्सी समझो तो ये रुपए के सिक्के 7 रखो, ये 7 क्या है? आसमान। और 7 आसमानों के नीचे ज़मीन। तो सोचो कि ज़मीन कितनी छोटी, 7 कुर्सी के सामने से। और कुर्सी के ऊपर क्या है? एक पानी है, दरिया। क्या है? पानी है, बहुत बड़ा दरिया है। उसके ऊपर क्या है? पानी के ऊपर जन्नत के 100 दर्जे। क्या है? जन्नत के 100 दर्जे। यहाँ कुर्सी है, इसके ऊपर कुर्सी के ऊपर क्या है? फिर पानी है। क्या है? पानी है। पानी को क्या बोलते हैं अरबी में?
जल हिंदी में बोलते हैं, अरबी में माँ बोलते हैं। इसके बाद क्या है पानी के ऊपर? जन्नत के 100 दर्जे हैं जन्नत के। जन्नत की क्या है? 100 दर्जे। और यहाँ कौन सा दर्जा आता है? 1वां दर्जा आता है, 100वां आता है, 100वां आता है यहाँ। कम ज्यादा गुने कम गुने क्या करे सुनो ना। उसके बाद कितना दर्जा है? उसके बाद दर्जा 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 जाते जाते सबसे ऊपर का दर्जा क्या है? नंबर 1 दर्जा है, क्या बोलते हैं? जन्नतुल फिरदौस। जन्नत का कौन सा दर्जा है? जन्नतुल फिरदौस। क्या बोलते हैं इसको? जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह के नबी क्या बोले? जब कभी तुम जन्नत का सवाल करो तो अल्लाह से क्या मांगो? जन्नतुल फिरदौस को मांगो, जो सबसे ऊंचा दर्जा है। और 100 दर्जों के ऊपर जन्नत के यानी जन्नतुल फिरदौस की छत क्या है? हमारा छत आसमान, इसका छत क्या है? आसमान आसमान आसमान। यहाँ से उसका छत कुर्सी, कुर्सी का छत पानी, पानी का छत जन्नत। और जन्नत के ऊंचे दर्जे का छत ये ऊपर क्या है? अर्श है। यहाँ क्या है? अल्लाह का अर्श है। और अर्श के ऊपर कौन है? और अर्श जन्नत में जन्नतुल फिरदौस का छत क्या हो? हदीस में आता है जन्नतुल फिरदौस का छत क्या है? कुर्सी यहाँ है छोटी, और ये क्या है? अर्श यहाँ है। हमें नहीं बोल सकते कितनी बड़ी है, सुभान अल्लाह बेहतर है, मगर उसके लिए अल्लाह के नबी एक बेहतरीन मिसाल सुने। हदीस के अंदर आता है अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अर्श के सामने कुर्सी कितनी छोटी है। हदीस में कितनी छोटी है? एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है। क्या है? रेगिस्तान। रेगिस्तान किसे बोलते हैं? डेजर्ट, एडारी बोलते हैं। एडारी बोलते नहीं। हिंदुस्तान में कौन सा डेजर्ट है? सहारा डेजर्ट है। डेजर्ट मतलब वो कितने तकरीबन 8 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20-25 किलोमीटर तक डेजर्ट होता बड़ा। तो वैसे बहुत बड़े डेजर्ट के अंदर बहुत बड़े मैदान है, 25 किलोमीटर तक 15 किलोमीटर तक बहुत बड़ी एक रेगिस्तान है। उस रेगिस्तान में एक अंगूठी डाले हुए, सोने एक अंगूठी वहाँ डाल के आगे क्या ढूंढ सकते? उसके सामने कोई हैसियत है? यहाँ कहूँगी तो ढूंढना मुश्किल है। तो एक रेगिस्तान में अंगूठी कितनी छोटी है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अर्श के सामने कुर्सी उतनी छोटी। सुभान अल्लाह। देखिए अर्श के सामने अल्लाह की कुर्सी उतनी छोटी है। अब कुर्सी के नीचे आसमान रुपए के मिलने होता है, वो कितना छोटा खड़ा। अब अंगूठी जब अर्श के सामने मैदान के सामने अंगूठी कुर्सी है, अब कुर्सी के नीचे 7 आसमान है, 7 आसमान के नीचे कहाँ की जमीन है, उसमें कहाँ? सुभान अल्लाह। अल्लाह की ज़ात कितनी अजीम। अब अल्लाह अर्श के ऊपर है, जो सबसे बड़ा है, अर्श से बड़ा है। अब वो ज़ात कितनी अजीम। तो इंसान का दिमाग जो है काम नहीं करेगा इसका हिसाब डालने के लिए, इसका हिसाब बनाने के लिए इंसान का जो है दिमाग जो है काम नहीं करेगा। अरे अल्लाह का अर्श का हम लोग क्या समझे? सिर्फ तफसीर इब्न कसीर के अंदर आता है अल्लाह के अर्श को फरिश्ते उठा के हैं। कितने फरिश्ते उठाते हैं? अल्लाह के कितने फरिश्ते? 4 फरिश्ते। याद रखो अल्लाह के अर्श को कितने फरिश्ते उठा के हैं? और क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श को कितने फरिश्ते उठाएंगे? 8। कितने? अब कितने उठा के हैं? 4। और क़यामत के दिन वो 8 हो जाएंगे, यानी 4 फरिश्ते और वो आएंगे, 8 फरिश्ते। तो तफसीर इब्न कसीर के अंदर लिखा हुआ है वो फरिश्ता जो अल्लाह के अर्श को उठा के है, उसकी आंखी है ना, वो आंखी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी उसकी आंखी है कि एक परिंदा सफर शुरू करके